Hello student, today we are going to learn next problem. In that problem we learn all concept related to company accounts or company account issue of shares. Okay, means in that problem we learn authorized capital, to calculate issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, calls in arrear, and as well as share premium. This is problem from your textbook, page number 341, problem number 1. But in that problem, in your textbook, mention only shows the that capital working note. But I'll show you with a journal entry and as well as balance sheet. See, already first problem, Vijay Limited was a registered authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. Company issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at premium rupees 2 per share. Company received application for 80,000 equity shares were allotted the shares. Okay. Company received application money rupees 3 per share, allotment money rupees 4 per share including premium, and first call money rupees 3 per share. The director have not made final call rupees 2 per share. All the money received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. Right now I'll explain one by one. Vijay Limited Company registered their authorized capital 15 lakh. How many? 15 lakh. That can be divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. This one is a company's authorized capital or registered capital. See, here's what authorized here, registered capital. But company require some capital and that can be company issue in the share market is known as a issued capital. फर्म को जितना ही कैपिटल रिक्वायर है उतना ही फर्म क्या करने वाली, कैपिटल इशूड करने वाली मार्केट में. तो यहाँ पे फर्म इशूड करी है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10. मतलब कंपनी को 10 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट है. ओके, एंड दैट कैन बी इशूड 1 lakh multiplied by 10 lakh and at premium rupees 2 per shares. At premium rupees 2 per shares. मतलब total value of share is what? 10 plus 2, 12 rupees. Company received application for 80,000 equity shares. वो बस अंडर सब्सक्रिप्शन है. जितने कंपनी ने क्या किए थे, इशूड किए थे, उसे कम हो गए, 80,000 हो गए. तो मतलब क्या है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सबको पता है, जितने इशूड करने थे किए थे फर्म ने उसे कम रिस्पांस आता है या उतने कम एप्लीकेशन आते तो उसे कहा जाता है, क्या है वो, अंडर सब्सक्रिप्शन है. 80,000 है. ठीक है, मतलब इन दैट केस जितने भी हमें एप्लीकेशन आए उतने ही हम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कैलकुलेट करेंगे उसी अमाउंट के ऊपर. मतलब यहाँ पे 80,000 के ऊपर ये सब कैलकुलेट होगा. ठीक है, याद रहेगा सबको. अब इशूड वैल्यू पे नहीं होगा, जितने भी हमें एप्लीकेशन आए उसी के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी की अमाउंट देखो क्या है, 3 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल रुपीज़ 3 पर शेयर. देखो 3 एप्लीकेशन के लिए प्लस 4 अलॉटमेंट के लिए 7 हो गए, प्लस 3 फाइनल कॉल के लिए कितने हो गए, 10 हो गए. और जो लास्ट कॉल होगा वो फाइनल कॉल होगा. फर्स्ट कॉल के लिए 3 रुपीज़ है ना, तो लास्ट कॉल होगा फाइनल कॉल. बट डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल. डायरेक्टर ने मेड ही नहीं किया. जो लास्ट वाला कॉल था डायरेक्टर ने मेड ही नहीं किया. तो हमें कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किसके करने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इतने ही हमें कैलकुलेट करने. फाइनल कॉल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्टर ने मेड ही नहीं किया तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. अंडरस्टूड एवरीबडी. ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितने रुपीज़ है, 3 रुपीज़ पर शेयर है.
तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 80,000 एप्लीकेशन आया था ना हमें, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। सेम अलॉटमेंट के लिए क्या है 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 and as well as first call 80,000 multiplied by 3. But here they mention some information. All money were received except one shareholder who holding 500 shares. How many? 500 shares. He did not pay first call. उसने क्या किया नहीं है, फर्स्ट कॉल पे की नहीं है। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी थी, 3 रुपीज़ थी। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, उतनी ही अमाउंट वो नहीं दे रहा है। 500 मल्टीप्लाइड बाई 3, बाकी सारे अमाउंट दिए थे, एप्लीकेशन दिया तो ऑलरेडी देता ही है। जब वो प्रॉस्पेक्टस परचेस करता है तभी उसके पास एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो उसके पास वो तो मनी पे किए, अलॉटमेंट भी पे किया है, और यहाँ पे बताया गया प्रॉब्लम में क्या है, सिर्फ उसने क्या नहीं पे किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल की मनी कितनी होगी, 500 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल की एच शेयर अमाउंट क्या है, ₹3। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेंगे वो। चलो फिर देखते हैं वर्किंग नोट क्या एग्जैक्टली करते हैं। आपको बताया गया प्रॉब्लम में शो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉस्ट इन अरियर एंड शेयर प्रीमियम विथ बैलेंस शीट। तो वही देखते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल ऑलरेडी गिवन इन योर प्रॉब्लम, ऑलरेडी गिवन। दे मेंशन डायरेक्टली रजिस्टर विथ एन ऑथराइज कैपिटल 15 लाख। कितना है, 15 लाख, मीन्स 1,50,000 इंटू 10 दिया है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देते हेडिंग देके 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 15 लाख। देन वी कैलकुलेटेड इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितने इशू किए थे शेयर्स, वो है इशूड कैपिटल। तो वो थे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 लाख हो गया, ये इशूड कैपिटल। बाद में आता सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स हाउ मेनी पब्लिक रिस्पॉन्डिंग, कितने पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया या कितने एप्लीकेशन हमारे क्या हो गए, क्या रिसीव्ड किए एप्लीकेंट ने। तो कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए, 80,000। कितने आए, 80,000। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 88 लाख इज अवर सब्सक्राइब कैपिटल। अंडरस्टूड। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फर्म ने जितने भी इशूड किए थे उसमें से एग्जैक्टली पब्लिक ने रिस्पॉन्स कितना दिया है, या कंपनी को एग्जैक्टली रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने हैं, वो होगा उनका सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे क्या है, 8 लाख। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, तो कॉल ओनली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ओके, ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो सेम एज इट इज जो सब्सक्राइब कैपिटल था वही कॉल्ड अप, सब्सक्राइब कैपिटल था, वही मोस्टली टाइम वही क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल होता है। बट यहाँ पे कॉल कितने किए हैं डायरेक्टर्स ने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल कॉल किया है क्या, नहीं किया है, तो फाइनल कॉल कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो कितना होगा कैलकुलेशन फिर यहाँ पे 64,000। हाउ मेनी, 64,000। जितने कॉल्ड अप है उतने ही लिखेंगे। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 64,000। हाउ मेनी, 64,000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। क्या है उसका फॉर्मूला, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। जो भी कॉल्ड अप कैपिटल उसमें से क्या करो, कॉल्स इन अरियर्स माइनस करो। कॉल्स इन अरियर्स कितने हुए थे मैंने कैलकुलेट करके बताया था, अरियर हो गए थे, तो अरियर कैलकुलेट करके देखते हैं। अरियर्स कितने थे, कॉल्स इन अरियर, अरियर मतलब अनपेड है, कितने 500 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल फर्स्ट कॉल पेंडिंग था ना, तो 1,500 क्या करते माइनस करते। 6,40,000 में से क्या है माइनस करते 1,500, तो
तो आंसर आ रहा है 6,38,500, 6,38,500। ये हो गया हमारा क्या, कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अंडरस्टूड एवरीबडी? पेड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे, पेड अप कैपिटल, ओके। तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर, और कॉल्ड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया वो भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या है, 80 रुपीज़ है ना। तो 80 रुपीज़, सॉरी, शेयर प्रीमियम क्या ₹2 है, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,60,000। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000। देखो मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे कि मैम ने 80 लिखा है, एक्चुअली इसकी टोटल करने जाए तो कितनी हो रही है, 10 हो रही है। तो ये देखो उसमें से 2 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है, वो अलॉटमेंट में 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है, तो वो हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करने। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, देखो एप्लीकेशन में क्या है, ₹2 क्या है, अलॉटमेंट मनी कितनी रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है, उसमें से 2 रुपीज़ किसके है, प्रीमियम के है। तो कितने रुपीज़ रिमेनिंग रह गए, 2। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। 5 + 3 फर्स्ट कॉल के कितने हो गए, ₹8। अंडरस्टूड? तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। एक बार ठीक से देखो यहाँ पे कैसे, ये तो दिया हुआ था, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल दिया था, इशूड कैपिटल मेंशन किया था, सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, फर्म रिसीव्ड एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब कैपिटल। कितने कॉल किए थे, कॉल में अभी क्या क्या कंसिडर नहीं करना है, फाइनल कॉल कंसिडर नहीं करना है, और शेयर प्रीमियम नहीं कंसिडर करना है, बाकी सब कंसिडर कर लेना है, ठीक है। देन पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर करो, तो वो हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल। कॉल्स इन अरियर मतलब क्या है, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उन्होंने शेयर्स की अमाउंट पे नहीं की है, तो इज नोन एज अ कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट किया, और शेयर प्रीमियम की वैल्यू तो हमें दी थी। देखो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की अमाउंट है, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 15 लाख। लेकिन कैपिटल क्या है वही लिखेंगे, 6,40,000 माइनस कॉल्स इन अरियर, तो आउटर में अमाउंट है 6,38,500, एंड प्रीमियम भी लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, प्रीमियम भी कहाँ पे, लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट टैली, एक बार देखो उसे, ओके। उसके PDF इसके साथ भी सेंड करने वाली, तो आप PDF में डिटेल में देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबडी हाउ टू कैलकुलेट ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप, कॉल्स इन अरियर एंड शेयर प्रीमियम। सिर्फ इतना याद रखो, ये शेयर प्रीमियम एंड कॉल्ड अप कैपिटल करते तो जितने एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव हुए उतने एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 80,000 इशूड हुए थे, तो यहाँ पे 80,000 से ही कैलकुलेट किया, नॉट 1 लाख, ठीक है। देन जनरल एंट्री करते हैं। पहले जनरल एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन जनरल एंट्री इज व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। 2,40,000 कैसे, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 3 ज़ा 24, 2,40,000 आ गया यहाँ पे। देन दैट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, देन एंट्री एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। द नेक्स्ट वन allotment with premium, allotment with premium, then entry is what, share allotment account debit 3,20,000 to equity share capital 1,60,000 to share premium 1,60,000। एक्चुअली हम ये लिख लेते हैं ना शेयर प्रीमियम, तो ऑटोमेटिकली ये भी अमाउंट प्रीमियम की कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। $80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने के बाद ये अलॉटमेंट का आंसर आया है। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री इज व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 32,000।
गॉट इट। द नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंट्री इज व्हाट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने 3, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, पर शेयर वैल्यू क्या थी फर्स्ट कॉल की 3, तो आगे आंसर 2,40,000, 2,40,000। बट उसके बाद जब हमें पैसे रिसीव होने वाला था तब हमें पता चला कि उसमें से 500 शेयर्स क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर हो गए, क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर हो गए, तो उसकी एंट्री करनी होगी। तो एंट्री करते हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, तो कितने अरियर्स हो गए थे 1,500। एक्चुअली फर्स्ट कॉल कितने थे 2,40,000, तो 2,40,000 में से 1,500 लेस करते तो एग्जैक्टली अमाउंट कितनी रिसीव हुआ हमें 2,38,500, कितनी 2,38,500। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है, तो फर्स्ट कॉल मनी कितनी रिसीव्ड हुई थी हमें 2,40,000, उसमें से अरियर मतलब अनपेड शेयर्स कितने थे 1,500, वो लेस किए, मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी क्या है रिसीव्ड अमाउंट है, वो हमारे लिए क्या है रिसीव्ड अमाउंट है 2,38,500। गॉट इट। ओके, देखो एक बार एक प्रॉपरली प्रिपेयर करो इस टाइप के एडजस्टमेंट एग्जैक्टली कैसे आता, तो इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ फॉर फीचर छोड़ के बाकी सारे कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में क्या है क्लियर हो चुके होंगे।